Yes. Okay. Vijay sir, start kare sakhiye sir. Yes, you can start. Hello. Uh, Good afternoon, one and all. I welcome you on the webinar series and the first webinar of our EDC incubation webinar of first step towards startup. For this webinar, we have a very renowned guest, Mr. Rudresh Vyasa. The sir is head of education at engineeringtechnique.com for Okay. SolidWorks and 3D Vijay sir, printer. start kare sakhiye sir. Yes, you can start. Hello. Hello. Good afternoon, one and all. I welcome you on the webinar series and the first. Okay. Sir is a very renowned Sir is a head education at engineeringtechnique.com for SolidWorks and 3D printers. Sir has a overall 25 plus years of experience in IT, 3D CAD, and 3D printer engineering education industry. Since last 18 plus year, Sir has been working as a business development manager based in education area. Sir has launched futuristic IT products like various apps, development and cloud programs. And apart from job and placement oriented courses, Sir has been promoting concepts and entrepreneurs among the students since last 2 decades. Uh, Sir has been invited as a various hackathon jury members as well as the mentor, and he's established speaker and mentor in many nodal incubation centers. Uh, Sir is a pioneer in 3D printing technology education, promoting concepts of digitalism of manufacturing, and conducted 75 plus additive manufacturing programs sponsored by TechKip, Gujcoast, and DST since 2016. Sir has set up total 10 plus ICT centers across Gujarat successfully within just 2 years. Uh, and a new 3D printer education brand in the region with 75 plus network centers, schools, colleges, and universities. Sir is here with us today for sharing his insights on how to set up our startup. So I will request Sir Rudresh sir to start your presentation, and I welcome you on behalf of the Parul University. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, Hetal madam and Darshan sir and the team of EDC, those who are right now not with us. As you rightly said, I am connected with this today in the morning only. I contacted one of my old students of 2000 and I had a talk with him. He came back from Australia long back, somewhere around 5 years back. So I came to know that this is computer department, and currently I am working with physical product development company. So me and Hetal madam was discussing that being an IT person, I worked for 20 years in information technology area. I started my career in 1994, and in 2000 there was a IT crash, and students were very much worried in my company. Basically, it's an education company. It was an education company, so they were worried that what will happen to us if this job will not be there. Then what we will do? So we had a long discussion. I had a long discussion with Hetal madam also, and I just wanted to repeat this example here because I know this is your computer department. So not only physical product development, anybody can do any startup. The engineer can do the startup on Ayurveda also and medical also. Just what is the requirement for the same, we can first of all discuss today so that anybody can do any kind of a startup. But one example I just wanted to repeat this here for IT or computer related, because you all, currently the students who joined for this particular session are from the computer division. So this example will be very much relevant to you all.
द 2000 क्रैश ऑफ आईटी में ऐसा हुआ कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा था कि हम अब क्या करेंगे, हमको जॉब नहीं मिलेगा, हमारी सिचुएशन आगे चल के क्या होगी। तो एक एक स्टूडेंट से हमने स्टार्ट किया, जो स्टूडेंट मेरे पास आया, तो उसने मुझे बताया कि मैं क्या करूं। तो मैंने बोला कि अभी आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर एजुकेशन के अलावा और क्या कर रहे हो। बिलीव मी, उस टाइम पे कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कोई स्पेशल बीसीए एमसीए और इतना ज्यादा चलन नहीं था। तो वो बीकॉम कर रहा था और एक कॉमर्स क्लासेस में वो अपना बीकॉम का क्लासेस करने के लिए जाता था। तो मैंने बोला कि चलो ऐसा करो, आप आपके क्लासेस में जाइए और वहां पे कंप्यूटर है। तो उसने बोला कि हाँ, मेरे क्लासेस में कंप्यूटर है। मैंने बोला कितना यूज कर रहे वो लोग कंप्यूटर का। तो लकीली ऐसा था कि वो लोग ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था, वो खाली कंप्यूटर का यूज करस्पॉन्डेंस के लिए करते थे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो एमएस ऑफिस में जो छोटा मोटा काम होता था वही करते थे, उनके पास कुछ रेडीमेड। Rukraj sir, हाँ जी। so sorry to interrupt, but this session is for all the engineering branches, not only for computer. Okay. So I will, sir, the session will be definitely on the ideation. बट ये एग्जाम्पल इसलिए है कि वो आईटी का भी अगर बच्चा है तो वो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने विजिट किया क्लासेस में और पता किया, और ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग अ प्रोग्राम विदाउट एनी डील कि भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा। और सक्सेसफुली वो प्रोग्राम बनने के बाद थर्ड ईयर में जब वो क्लासेस में गया तो जो उनके ओनर थे उन्होंने बोला कि आप अभी थर्ड ईयर का जो फीस है वो नहीं देंगे तो चलेगा, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है वो हमारे लिए काफी यूजफुल है। तो फिर हमने एक सेटअप किया सर्वे का, और जितने भी आईटी स्टूडेंट थे उनको मार्केट में हमने भेजा और पता किया कि कितने लोग ऑफिस में कंप्यूटर नहीं यूज करते हैं और कंप्यूटर का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। और उन सबको हमने वेब डेवलपमेंट तब ऐप तो नहीं था, तो वो हमने स्टार्ट किया। सो राइट नाउ वो जो लड़का है वो एक जॉब भी कर चुका है, बीच में ऑस्ट्रेलिया गया है, आउट ऑफ कंट्री भी गया है जॉब करने के लिए, और उसका कैरियर है वो जो स्टार्टिंग में जो उसको जो हेजिटेशन था वो सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि आप किस तरह से आगे काम करेंगे। नाउ अगर मैं ये 3-4 साल में मैं देखूं तो स्टार्टअप और इंक्यूबेशन में जो काम हो रहा है, जैसे पारुल यूनिवर्सिटी में एडीसी डिपार्टमेंट और अभी वडोदरा स्टार्टअप स्टूडियो, तो ये जो काम हो रहा है, तो ये जो लास्ट 4-5 साल से जो इसको जो इतना लेवल पे जो गया है, जो गुजरात में, पूरे गुजरात में गया है, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसी और उसके ऊपर तो है ही इम्पोर्टेंट। बट बच्चों को कई बार क्वेश्चन होता है कि मेरे पास क्या चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई गैजेट चाहिए, मैं तो मैकाट्रॉनिक्स कर रहा हूँ तो मुझे सेंसर चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कंप्यूटर कॉलेज के अंदर। इंक्यूबेशन या स्टार्टअप सेंटर नियर बाय मेरे नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा मुझे इनिशियल लेवल पे कोई फंड नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को होते रहते हैं। बट यहाँ पे जैसे आज का ये जो टॉपिक है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्टार्टअप इज नथिंग एल्स बट यू रिक्वायर एन आइडिया, राइट। सो आज सेशन इतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगा, बट आप एक नोट कर सकते हो कहीं पे आपके जो आंसर्स है, जो मैं अगर कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, और डेफिनेटली हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो आइडिया जो है वो एक जरूरी है, बट बिलीव मी आइडिया ऐसे ही नहीं आता है। कई बार आइडिया आता है तो हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो आइडिया के पहले एक आपका स्किल होना चाहिए, वो स्किल बहुत ही जरूरी है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक यूनिक आइडिया कब आएगा आपको? आइडिया तब आएगा जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे
तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई किया है उसके ऊपर मैं शायद कुछ काम कर सकता हूँ। वो प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हुआ है वो प्रॉब्लम पर्सनल हो सकता है, अपने घर का हो सकता है, आसपास के किसान जो फार्मिंग करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो जॉब करते हैं, जो जॉब के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जब आप देखेंगे तो आपको उनमें बहुत सारे रूटीन प्रॉब्लम्स जो है वो आपको मिलेंगे, और वो रूटीन प्रॉब्लम जो है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है ना। वो रूटीन प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रॉपर स्किल चाहिए, और वो प्रॉपर स्किल क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन में बोलूंगा, ऑब्जर्वेशन। सो जब तक आप प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जो भी सॉल्यूशंस भी है, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो भी लोग आसपास में आपके काम कर रहे हैं, जो भी लोग आसपास में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, खाना पीना जो भी हो रहा है उसके ऊपर अगर आप एक ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपको आइडिया आने का चांसेस बहुत कम है। और वो प्रॉब्लम आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम काम कर सकते हैं। मैंने हेतल मैडम से वही बात की थी कि हमको सबसे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उसको ऑब्जर्वेशन करके लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे, और वो प्रॉब्लम चाहे उसके ऊपर हम सॉल्यूशन देने वाले हो, मैं उसके प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन करने वाला हूं या नहीं करने वाला हूं, मगर उसको लिस्ट करना बहुत जरूरी है। और बिलीव मी, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा आपसे तो उसके ऊपर आप कोई सॉल्यूशन बना पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, बट आपके जो फ्रेंड्स है उनकी जो टीम है, या आप पारुल यूनिवर्सिटी हेतल मैडम के पास जाते, एडीसी के पास जाते और उनके अंदर जो दूसरे लोग हैं, दूसरे स्टूडेंट्स है, दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है, वो भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और आप किसी और प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन पे काम कर सकते हो। तो आज का ये जो सेशन है उसका एजेंडा यही है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन करके, या आपने अगर कोई अभी जो मैं बोल रहा हूं उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ऑब्जर्व किया था और वो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया था, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको भी दिखाऊंगा, मैं जो लाइव ऑब्जर्वेशन मेरा खुद का है। फोटोग्राफ भी मैंने खुद ही क्लिक किया है, क्योंकि पहली बार जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे भी खुद पता नहीं चला था कि ये एक प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन किसी ने किया है, जुगाड़ किया हुआ है। उसका भी एक एग्जांपल हम लेंगे और आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन जो स्किल है वो बहुत जरूरी है। इसका एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे लेंगे, और वो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, विच इज नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन टिल डेट। मतलब एक आप प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर रहे हो जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी चीज भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई कि कोई एक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, आज तक इसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया, बट ऐसा भी नहीं है कि ऐसा प्रॉब्लम मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसा भी नहीं है कि वैसी ही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, बट नॉट हैविंग प्रॉपर सॉल्यूशन मीन्स एक ऐसी चीज आपने ऑब्जर्व की जिसका जुगाड़ किसी ने किया है, मगर उसके ऊपर आज तक किसी ने परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बनाया, उसके ऊपर आज तक किसी ने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसके ऊपर आज तक किसी ने कोई सर्विसेज नहीं बनाया। तो ऐसी भी कोई चीज आप कर सकते हो। और तीसरा भी है कि आज तक किसी ने कोई सॉल्यूशन बनाया है, मगर आपके ऑब्जर्वेशन के बाद, नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने के बाद आपको लग रहा है कि इसमें मैं मैकेट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ या आईटी का स्टूडेंट हूँ या मैकेनिकल का या कोई सिविल का स्टूडेंट हूँ, और मेरी जो नॉलेज है उसको ध्यान में रख के मैं इसमें अगर कोई और एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी डालूंगा तो इसका इससे भी बेहतर सॉल्यूशन मिल सकता है, तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डू नॉट ट्राई टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय पुटिंग न्यू टेक्नोलॉजी लाइक सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक एप्स एंड ऑटोमेट अननेसेसरीली। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कहीं
स्टूडेंट्स ऐसे मैं ज्यूरी के तौर पे, मेंटर के तौर पे काम करता हूँ तो कई बार नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट कई बार जो आइडिएशन लेके आते हैं वो अननेसेसरीली उसमें सेंसर्स डालने की कोशिश करेंगे, उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसी भी मैं वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें आपका सॉल्यूशन खाली टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है तो उसका सॉल्यूशन वैसे ही हम ढूंढते हैं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी है। जैसे एक एग्जांपल मेरे पास है कि हम जब घर में अगर मैं एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और बर्तन साफ करने का कोई भी अगर अभी कोई भी अच्छा सा कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या करते हैं कि भाई कपड़े धोने का मशीन है वैसे ही हम बर्तन धोने का मशीन सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसको छोड़ के, टेक्नोलॉजी को छोड़ के भी हम कुछ नया चीज ढूंढ सकते हैं और एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं जो मास तक, मतलब घर घर तक पहुंच सकता है। तो ये कॉशन है मेरी तरफ से कि भाई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, स्टूडेंट है आप, तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जो टेक्नोलॉजी के ड्रिवन जो सॉल्यूशन है उसी के ऊपर काम करना है। सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और जो ऑब्जर्वेशन का जो सबसे पहला जो स्टूडेंट है उनको, मैं बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई आइडिया नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक सेशन बनाया है। हमारा जो एजुकेशन जो काम, एजुकेशन का काम है उसमें मेक इन इंडिया करके, मैक इन इंडिया करके, तो उसमें हमने यही सबको बताया है कि आपको एज अ स्टूडेंट सबसे पहले आपके घर से आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके स्टार्ट करना चाहिए। सो आपका जो मम्मी या जो भी लोग घर पे जो काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, पूरा बिल्डिंग आपका जो है, आपकी सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी में कोई सिक्योरिटी का इश्यू है, सो एकदम नियर बाई चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीइंग अ इंजीनियर आपका इंजीनियरिंग का लेबल लगा है तो आपको हमेशा कोई इंजीनियरिंग के बहुत बड़े मशीन पे ही काम करना है। आपको सीधा 3D प्रिंटर या कोई बड़ा मशीन है उसका ही कोई नया सॉल्यूशन ढूंढना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि एकदम नजदीक, जो घर के पास, एकदम आसपास में कोई जो प्रॉब्लम है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा उसमें कि एक छोटा सा घरेलू प्रॉब्लम किसी पर्सन ने आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर उसने बहुत बड़ी कंपनी अभी आज बना दी है। तो ऐसी भी चीजें हम देखेंगे। सो मुझे लग रहा है कि मैं जो आपको अभी जो बताना चाह रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्टार्टअप फॉर ऑब्जर्वेशन टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, एंड वंस यू आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम you can come to your EDC department, the immediate computer department or relative department HOD, or the complete team including me. I am associated with Parul University in all aspects, so you can come with those observations and problems and we can start finding the solution for that problem. So we can do some hackathon जो already plan किया हुआ है उसमें हम उसका solution ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ईडीसी डिपार्टमेंट ने आज मुझे सेकंड टाइम बुलाया आइडिया क्रिएशन के ऊपर। पहले भी मैं एक सेमिनार कर चुका हूँ फरवरी में ही लास्ट ईयर, और आज जनवरी में, मतलब एक साल से पहले मैं वापस एक आइडिएशन पे सेमिनार कर रहा हूँ। इन बिटवीन में मैंने काफी मेंटर और जूरी के तौर पे आपके यहाँ पे काम किया है। नाउ यहाँ पे मैंने एक चीज आइडेंटिफाई की है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर रिलेटेड है, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि एक एवरग्रीन इंडस्ट्री बन गई है आईटी, और ये और किसी वजह से नहीं हुआ है, मगर एक 25-30 साल से हमारा जो इंडिया है वो एक कंप्यूटर के ऊपर जो मैक्सिमम स्टार्टअप, मतलब नए आइडिया और नए जो सोल्यूशन है उसके ऊपर काम कर रहा है, इसलिए ये बहुत बड़ा काम हो गया है। तो आज जो मैं बात करना चाहूंगा आईटी और कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है, मगर एक ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम करके एक जनरल प्रोडक्ट डिजाइन का एक आप किस तरह से काम कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और थोड़े बहुत
ऑब्जर्वेशन में मेरे आपके सामने रखूंगा, तो आप उसके ऊपर भी सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मेक इन इंडिया, इसको हमने जानबूझ के MECH लिखा है। सो मैकेनिकल समझ सकते हो आप, मैकाट्रॉनिक समझ सकते हो। सो जो फिजिकल प्रोडक्ट है, जो आप देख सकते हो, वो एक बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं, ताकि हम गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उसके ऊपर हम काम कर सके। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका थिंकिंग है वो क्रिएटिव रखना है। आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया, ऑब्जर्वेशन के साथ एक जो आपको मैंने एक चीज दी, और डिजाइन न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद आप उसका सोल्यूशन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट बना सकते हो या नया प्रोडक्ट बना सकते हो जो आपके दिमाग में होगा। और फिर बाद में आप उसका सर्वे कीजिए कि अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में इसकी कोई अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, उसका एक सर्वे कीजिए। हर बार मैं जब सर्वे बोल रहा हूँ, तो आप अपने ही कॉलेज के 100 स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को ढूंढ के आप सर्वे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उसमें जो सर्वे में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर जो भी डिसएडवांटेज या जो भी है, उसमें जो स्कोप है, उसको ध्यान में रख के एक नया मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो। वो जो 3D CAD में आप डिजाइन कर सकते हो, और 3D प्रिंटर के थ्रू आप उसको एक आपके सामने, आपके पास वो अवेलेबल हो, इस तरह से आपके हाथ में अगर वो आ जाता है, तो उसको आप किसी 10 लोगों को, 100 लोगों को दिखा के आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसका फीडबैक ले सकते हो, और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं उसको। और फाइनली उस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करके, एक छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चर करके, उसको आप अपने ही पीयर ग्रुप में, स्टार्टअप ग्रुप में उसको सेल कर सकते हो, या उसको फ्री में बांट सकते हो। और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट का थोड़ा अगर अच्छा फीडबैक आता है, तो उसके ऊपर आप ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हो, जिसके लिए पूरा इंक्यूबेशन सेंटर, EDC सेंटर और बहुत सारे नोडल इंक्यूबेशन सेंटर गुजरात में है, जो आपको इसके ऊपर हेल्प कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया, एक थिंक क्रिएटिव, डेवलपिंग डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट एक होना चाहिए आपका। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता है तब तक आप उसके पीछे पड़े रहे, उसको आप उसके साथ जिए, वो प्रॉब्लम के साथ जिए। मैंने हमारी एक क्लाइंट है जिन्होंने एक फाफड़ा मेकिंग मशीन बनाया है, तो वो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था लास्ट टाइम, नवसारी में वो कंपनी है। तो वो 3 महीने तक फाफड़ा के एक स्टॉल पे खड़े रहे थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें जो ये जो टेस्ट है और वो सब चीजें हैं, वो मशीन से क्यों नहीं बन रहा है। और काफी कुछ उन्होंने अपना खुद का योगदान डाल के वो बनाया था। तो मैं अभी पूरा का पूरा यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, बट एक चीज बता सकता हूँ कि हाथों से जब फाफड़ा बनता है तो ही उसका प्रॉपर टेस्ट आता है। तो उन्होंने उस चीज को ध्यान में रख के उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, और एक बहुत ही बढ़िया फाफड़ा मेकिंग मशीन उन्होंने बनाया। और उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फिक्स्ड है, सेट है, ऑल सेट है, बट एक नया स्टार्टअप किया विद दिस पर्टिकुलर मशीन। यू हैव टू कीप डिजाइन माइंडसेट विथ इंजीनियरिंग लर्निंग। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मैं जान के खुशी हुई कि मेरे सामने बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, तो वो एक डिजाइन माइंडसेट आपको रखना है। मीन्स आप एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ जो डिजाइन में है, उनसे मैंने सुना है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 20, 25, 100 जितनी अलग अलग डिजाइन पहले आप बनाएंगे एक ही प्रोडक्ट की आइडिया पे। उसके बाद एक डिजिटल डिजाइन बनाएंगे जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है, हम यहाँ पे है, हम यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर प्रमोट करते हैं, यहाँ पे हम आपको स्टूडेंट वर्जन दे सकते हैं, और या हमारी लैब दे सकते हैं यहाँ पे, और वहां पे भी अवेलेबल है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बताता हूँ आपको, एक प्रॉब्लम आप ऑब्जर्व कर रहे हो या एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपका रूटीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसकी आपको 2 नहीं, 20 नहीं, जितनी हो सके उतनी डिजाइन पहले आप बनाइए। उसमें अलग अलग
एंगल से उसको सोचिए। जितने मेंटोर आपके सामने आते हैं, जितने मेंटोर उसमें बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उतने वर्जन बनाइए। पहली भले आपने चेंज, पहली डिजाइन में भले आप चेंज कर रहे हो, बट उस डिजाइन को रहने दीजिए, पहली डिजाइन को दूसरी और बनाइए। जितने मेंटोर है, जितने लोग बोल रहे हैं इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उतने वर्जन आप बनाइए। सो कीप डिजाइन mindset in your mind as far as your apply your engineering knowledge in this. Reduce copy paste project. Copy paste मत कीजिए कोई चीज को, बट जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल है उसको एक अलग एंगल से सोचिए। लर्निंग बाय डूइंग, आप चीजों को खुद कीजिए। खुद अगर आप करेंगे तो आप जो सीखेंगे और वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका जो क्रिएटिविटी है वो उसमें अप्लाई होगा। और बिलीव मी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में, जब आपके घर के किचन के कोई प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो, या आपके घर के या आपकी नियर बाय सोसाइटी का काम कर रहे हो, तो वहां पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी कनेक्ट कीजिए, उनसे भी आप बात कर सकते हो कि मैं इस प्रॉब्लम पे काम, जितना हो सके उतना वोकल बनिए, जितना ज्यादा आप बोल सकते हो वो आप एक्सप्लेन कीजिए लोगों को प्रॉब्लम। और ऐसा मत समझिए कि ये मैं अगर किसी को बताऊंगा, अगर उसने मुझे ये बोल दिया या उसने बोला कि ये तो कितना फालतू आइडिया है, तो उसके ऊपर आप मत जाइए प्लीज। जितना हो सके उतना ज्यादा आप बोलिए। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, मतलब अगर कोई भी सजेशन आ रहा है तो उसको आप प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है तो वो ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि सोच लिया आपने अपने दिमाग में और उसके हिसाब से आप करना चालू कर दिया और आपने समझ लिया कि नहीं हाँ ऐसे ही होगा। ऐसा मत समझिए। जो भी चीजें एक बार आपको ट्राई करनी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मैंने किस तरह से, मैं कोई प्रॉब्लम पे जो ऑब्जर्व किया उसके ऊपर मैं किस तरह से ट्राई किया है। बिलीव मी, अभी तक मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया। मैं चाहूंगा कि आपका ये जो आज का ग्रुप है वो इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट बनाए। प्रैक्टिकल अप्रोच जैसे मैंने बताया, हैंड्स ऑन बिल्डिंग स्किल, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो नाउ जैसे मैंने बताया आपको, एक प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया था, उसको, उसका जो जुगाड़ है उसको मैंने ऑब्जर्व किया था, वो आपके सामने अभी मैं लेके आ रहा हूँ और आप लोगों को मुझे बताना है कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है, ये एक्चुअल में क्या है। दिख रहा है सबको स्क्रीन? ऑब्जर्व द चेंजेस प्रॉब्लम्स अराउंड अस। ये अहमदाबाद का फोटो है। मैं मेरी जो कार में बैठा हुआ था, मैंने देखा कि एक रिक्शा है, उसने ये बोर्ड लगाया हुआ है। तो लास्ट टाइम मैंने जब ये सेशन लिया था ईडीसी के थ्रू आपकी कॉलेज में ही, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा था कि ये क्या है। तो आज इंटरेक्टिव नहीं हो सकता, इसलिए मैं खुद ही बता रहा हूं कि मुझे क्या आंसर मिले थे। सबसे पहले तो लोगों ने ये बताया था कि ये एडवर्टाइजमेंट है, किसी संदीप सर का कोई ट्यूशन क्लास का एडवर्टाइजमेंट लग रहा है। बिलीव मी, मुझे भी ऐसा ही लगा था। फिर भी मैंने ये फोटो क्लिक किया और फिर मैंने ज्यादा ऑब्जर्व किया तो मुझे और दूसरे रिक्शा वालों का 100 में से 4-5 ही मिलते थे, मगर और रिक्शा वाले मिले जिसमें किसी ने ये बोर्ड उल्टा लगाया था। तो मैंने ऐसा सोचा कि शायद इसको इंग्लिश पता नहीं होगा, तो इसने ये बोर्ड जो है वो उल्टा लगाया होगा। बट मुझे पता चला कि नहीं, तीसरा एक रिक्शा वाला मैंने देखा जिसने खाली कार्डबोर्ड लगाया था। पुट्ठू कही आपने गुजराती में, दैट कार्डबोर्ड वॉज स्टिक्ड। तब मुझे लगा कि नहीं, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये कोई किसी ने पहले एडवर्टाइजमेंट को इंग्लिश नहीं पता था उसको उल्टा भी नहीं लगाया है, ये कुछ और है। और बिलीव मी, मैंने रिक्शा वाले को पूछना पड़ा मुझे। ऑब्जर्वेशन मेरा इतना स्ट्रांग होने के बावजूद थोड़ा अंदाजा आ गया मुझे कि कुछ तो ये टेक्निकल चीज है जो अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये कोई जुगाड़ है। और वो जुगाड़ किस लिए है वो मुझे थोड़ा जानना था। और मुझे पता चला कि जब रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चलाते हैं तब उनके ऊपर हवा नहीं आती है, पीछे पैसेंजर से तो बहुत हवा आती है,
पैसेंजर तो काफी ज्यादा ही हवा आती है, उनको तो ज्यादा शायद वो हवा नहीं भी पसंद है, फिर भी वो सहनी पड़ती है। मगर एक रिक्शा ड्राइवर जब बैठता है ना, तो उसके जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर हवा बिल्कुल भी नहीं आती है, और वो हवा को डाइवर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तब जाके मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और आप नहीं मानोगे, आज की डेट में मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो भी ये प्रोडक्ट किसी ने नहीं बनाई है। और स्कोप आप देखिए कितना बड़ा स्कोप है। अगर इसको आप बना देते हो तो रिक्शा ड्राइवर अगर नहीं परचेज कर सकता है इसको, तो आप किसी एडवर्टाइज देने वाले जो बिजनेस है उसके साथ टाई अप करके उनका एडवर्टाइजमेंट लेके रिक्शा ड्राइवर को आप फ्री में इसको लगा के दे सकते हो। जैसे आपको पता ही होगा कि रिक्शा ड्राइवर रिक्शा के पीछे जब पोस्टर लगाते हैं, वो रिक्शा ड्राइवर को तो पैसा नहीं देना होता है, उल्टा रिक्शा ड्राइवर को पैसा मिलता है उसके लिए। तो रिक्शा ड्राइवर को तो इसके ऊपर से उल्टा पैसा मिलना चाहिए। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो रिक्शा ड्राइवर को एटलीस्ट हवा मिल रही है। तो इसके ऊपर एक प्रोडक्ट बनना चाहिए मेरे हिसाब से। एक ऑब्जर्वेशन जो मेरा लेटेस्ट है वो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कोई हिल स्टेशन पे जा रहा हूँ कार लेके, और मुझे भी इसको अगर करना है तो कार में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो कार में तो आगे वाली जो नॉब है उसमें से मैं एक विंड को अंदर आने के लिए वो कर सकता हूँ, मगर जो रियल सेंस में जो पूरी की पूरी जो बाहर से जो हवा आती है वो लेने का प्रोविजन नहीं है। तो मैंने मेरे इंजीनियर्स जो यहाँ पे मेरी कंपनी में काम करते हैं, वो काफी ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी है, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, पहले की गाड़ी में ये अवेलेबल था, बट अभी एसी गाड़ी आती है इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। बट आज की डेट में फिर भी अगर देखेंगे जो एसी वाला व्हीकल नहीं है, जैसे छगड़े है जो क्लोज्ड आगे के टेम्पो है, जो आगे की बॉडी पूरी क्लोज्ड है मगर अंदर एसी नहीं है, उनकी गाड़ी में आज भी ये प्रोविजन अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन गाड़ी में तो ऑलरेडी अवेलेबल था, मगर जो एसी आने के बाद ये सॉल्यूशन निकल गया है, ये चीज यूज नहीं हो रही है। अब मुझे फिर भी मेरी गाड़ी में लगाना है, तो ये भी मैंने देखा, ऐसी कोई चीज भी इंटरनेट पे फोटोग्राफ मैंने देखे, बट ये चीज पॉसिबल नहीं था। तो रिक्शा के लिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो गाड़ी के लिए क्या हो सकता है, हम लोग सोच रहे थे। मैंने फिर और एक दो मेरे फ्रेंड्स से बात की तो पता चला कि ऐसी कोई अरेंजमेंट जो बारिश में बारिश का पानी गाड़ी में नहीं आने के लिए जो की जाती है, ऐसे अरेंजमेंट में जब आप विंडशील्ड जो ये जो खिड़की का जो शीशा है वो अगर 1-2 इंच नीचे करते हैं तो कंप्लीटली ड्राइवर और पहली आगे वाली सीट में ये हवा आती है। बिलीव मी, जब आप विंडशील्ड ये जो शीशा है उसको ज्यादा नीचे करते हैं ना, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि ड्राइवर के बाजू में बैठने वाले पर्सन को हवा नहीं आती है, पूरा का पूरा हवा पीछे की सीट पे जाता है। तो आप अगर हिल स्टेशन में है और आपको एसी की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके ऊपर ड्राइवर के सीट पे फ्रंट सीट पे हवा नहीं आती है, तो आपके एसी ही एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्कशन करके, नॉट ओनली 1 और 2, आपके साथ मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ आज, तो 15-20 लोगों से मैंने ये डिस्कशन किया है, तब जाके एक आइडिया इसके ऊपर आया है, और उसके ऊपर प्रोडक्ट अभी तक नहीं बना है, मगर मैंने एक प्रैक्टिकल अप्रोच करके देखा हुआ है, और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बाहर की साइड पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं तो मुझे ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है उसके जो काफी कुछ सर्टिफिकेशन है वो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बहुत कुछ ऐसा सुना, तो मैंने सोचा कि चलो अंदर से भी एक बार ट्राई करके देखते। तो मैंने पता किया कि जब कार के अंदर की साइड है वहां पे ये जो 3 एरो लगाया है, वहां पे मैंने एक थर्मोकोल से एक प्रोडक्ट को कट करके, या हाथ को मैंने रखा, सबसे पहले मैंने हाथ रखा है इस तरह से एंगल बना के चालू ड्राइविंग में, और उसके बाद मैंने एक थर्मोकोल से इसको कटिंग करके एक प्रोडक्ट बना के उसमें स्टिक किया,
और मैंने ऑब्जर्व किया कि अंदर से भी अगर मैं इस जगह पे अगर मैं कोई प्रोविजन करता हूँ तो हवा जो है बाहर की उसको मैं मेरे साइड पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे लगाई हुई है उतना आपको ग्लास नीचे करना है, उससे ज्यादा ग्लास नीचे नहीं करना है। जितना आपको ये प्रोडक्ट बनाना है साइज, उतना ही ग्लास आपको नीचे करना है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मे बी ये ऑब्जर्वेशन पे शायद प्रोडक्ट ना भी बने, तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे कोई प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन से अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट बनानी है तो एक ऑब्जर्वेशन, एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा। आपको हजार, मतलब आपको 2, 3, 5, 10, 20 ऐसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं। वो प्रॉब्लम्स को एक 5-10 लोगों का ग्रुप बनाना है, वो ग्रुप में उसको डिस्कशन करना है। शायद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा, जैसे मेरे पास नहीं था। मैं मेरी कंपनी के जो इंजीनियर्स है मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा आइडिया चुरा के ले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशन करके मैंने सालों हो गए, मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, मगर फिर भी अभी तक मेरा आइडिया किसी ने नहीं चुरा के, किसी ने इसके ऊपर प्रोडक्ट नहीं बनाई है। तो आप अपने आइडिया को जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको अपने पास मत रखिए, एक ग्रुप में डिस्कस कीजिए, उसके ऊपर सोल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए। बिलीव मी, कोई अचानक आपका आइडिया चुराने वाला नहीं है। और ऐसे बहुत सारे सेशन हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। किसी एक पर्सन को एक आइडिया नहीं आता है। पूरी दुनिया में जैसे बोलते हैं कि मेरे जैसे ही 7 लोग होते हैं, ऐसा सुनते हैं हम, मेरे जैसे 10 लोग होते हैं, मेरे जैसे ही फेस वाले। वैसे ही जब मैं कोई नया आइडिया सोच रहा हूँ तो मेरे से पहले 10 लोग पहले सोच चुके होते हैं, और मेरे साथ मैं जब सोच रहा हूँ तब भी दूसरे 10 लोग सोचते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? आइडिया आना नहीं है, प्रॉब्लम ऑब्जर्व करना नहीं है, मगर इसके ऊपर एक प्रोडक्ट बना के, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद भी आज आप स्टार्टअप्स को मिल सकते हैं। जितने भी स्टार्टअप से अभी प्रोडक्ट बना के बैठे हुए, फंड भी मिला है, उनके पास बहुत सारी लोग हेल्प करने वाले हैं, मगर इनके लिए चैलेंज ये है कि अब उसको स्केल, वो बिजनेस को बड़ा कैसे करे, वो मेरा प्रोडक्ट है उसको बेचे कैसे मार्केट में। तो अल्टीमेटली तो ऐसा है कि वो प्रोडक्ट आपको बेचने तक का जो काम है वो चैलेंजिंग बहुत सारे है। एक आइडिया या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चैलेंज नहीं है खाली। तो ये काम जो करना है, जो स्टार्टअप से पहले वाला काम है वो तो कर ले हम, उसके बाद उसको, अभी से वो चैलेंज के बारे में हम बात करेंगे, अभी से उसके ऊपर काम कर, वो सोच के घबरा जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक ऑब्जर्वेशन था मेरा। मेरे बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन है, मुझे जब याद आएंगे या मेरे थोड़े बहुत वीडियोस है मैं जब दिखाऊंगा तो आप उसको देख के पता कर सकते हैं कि उसमें भी काफी कुछ काम करना बाकी है। और मैं इस तरह से भी तैयार हूं कि अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि नहीं चलो एक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम, तो वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। अगेन मैं ये स्लाइड्स को वापस रिपीट करूंगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। एग्जिस्टिंग पहले एसी गाड़ियां नहीं थी तो ये अवेलेबल था। आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे टेम्पो है जिसमें एसी नहीं रख सकते, अफोर्डेबल नहीं है टेम्पो में, तो वहां पे ये सॉल्यूशन है। आप अभी वापस एक बार खुद भी ऑब्जर्व करना, गाड़ी तो आपको ऐसी नहीं मिलेगी विदाउट एसी। कोई पुरानी एंटिक कार होगी तो शायद मिल जाएगी, मगर टेम्पो आप देखेंगे तो ये ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि ड्राइवर सीट पे हवा लाने के लिए एक इस तरह का प्रोविजन था। ये तो मैंने पहले फिजिकली नहीं दिखाया, मगर ऐसा प्रोडक्ट आपने इंटरनेट पे मैंने ये इमेज मिली थी मुझे। ये मैंने जो प्रॉब्लम, जो ऑब्जर्वेशन है उसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते डिस्कशन में किसी ने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम जो आप डिस्कस कर रहे हो वो मैंने देखा है कि ऐसी प्रोविजन जब होती है, ऐसी गाड़ी जब होती है जो बारिश की पानी नहीं अंदर आने के लिए, उसमें जब थोड़ा सा शीशा खोलते हैं तो हवा ड्राइवर सीट तक आती है। तो ये एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन नहीं बोल सकते इसको, मगर एक सॉल्यूशन के लाने के लिए एक डिस्कशन इंटरमीडिएट बोल सकते हैं इसको।
और उसके बाद जब मैंने बोला कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए, तो मैंने इस जगह पे हाथ लगा के देखा और इस जगह पे मैंने एक थर्मोकोल शीट को काट के देखा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास तो सॉफ्टवेयर नहीं है डिजाइन का, मेरे पास प्रॉपर 3D प्रिंटर नहीं है, मैं कहाँ जाके 3D प्रिंट करूं। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के अगर आप चलेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक हाथ रख के चालू कार में मैंने ऐसे हाथ रख के मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, प्रैक्टिकल अप्रोच रखा। सेम वे प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने थर्मोकोल सीट, घर में जो बहुत सारे चीजें आप मंगवाते हो उसमें थर्मोकोल सीट आती है, तो उसको काट के आप उसका जो एंगल बना के आप इसको चेक कर सकते हो। मुझे पता नहीं आप लोग जो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया और मैंने जो सॉल्यूशन दिया वो प्रॉपर है कि नहीं। मैं चाहूंगा कि इसके बाद कोई डिस्कशन सेशन रखें हम, और मुझे कोई फीडबैक मिले। मैं पारुल जो थे, जो मैडम और सर जो इन्वॉल्व है, उनको भी मैं बताऊंगा कि ये प्रॉपर था कि नहीं। अदरवाइज वी कैन हैव अ सीरीज ऑफ सेशन ऑन दिस। ट्राई टू फाइंड डेली नियर बाई इश्यूज। जो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो इजी है आइडेंटिफाई करना, जिसको सॉल्व करना भी इजी है, जिसको इम्प्लीमेंट करना इजी है, जिसको प्रमोट करना पीयर ग्रुप में इजी है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मशीन है, रोबोट के ऊपर ही काम करके मेरा सॉल्यूशन आने वाला है, मैं नेक्स्ट जनरेशन का रोबोट बनाऊंगा तो ही मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ। और देखिए, एक स्टार्टअप सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने बहुत सारे स्टार्टअप के, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बड़ौदा में इकोसिस्टम में, अहमदाबाद की इकोसिस्टम में, तो मैंने देखा है कि 5-6 स्टार्टअप कर चुके हैं, तब भी अभी पहला स्टार्टअप अभी जाके कुछ सक्सेसफुल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्लिक में आपको कोई ऐसा बहुत धांसू आइडिया मिल जाएगा और आप बड़े स्टार्टअप बन जाएंगे। तो पहले नियर बाय से स्टार्ट कीजिए, बातें कर करके, लोगों से मिलते मिलते, आइडिएशन के ऐसे बहुत सारे सेमिनार अटेंड करके आपको कोई नया आइडिया भी मिल जाएगा। देन सक्सेस स्टोरी, लेट्स चेक वन सक्सेस स्टोरी। अब मैं जब बता रहा हूँ कि आपको नियर बाय आइडिया को देखना चाहिए, तो घर के आइडिया को देखना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी मदर को इतना अच्छी तरह से हेल्प नहीं कर पाऊँ, बीइंग अ मेल पर्सन, मैं तो आपके मदर को जो रूटीन काम कर रहे हैं उसमें हेल्प करना चाहिए। तो कई बार मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को क्वेश्चन किया कि सर ऐसे किचन और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे क्या स्टार्टअप मिलेगा। तो किचन में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो इंजीनियर बनाते हैं। कोई ऐसा इंडस्ट्री में एरिया नहीं है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे इंजीनियर काम नहीं कर रहे। डॉक्टर को भी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। तो मैंने एक एग्जांपल आइडेंटिफाई किया और मैं आपके सामने यहाँ पे एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा। शायद आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 2018, बहुत दूर की भी बात नहीं है जी, मुस्तफा करके एक लड़का है केरला का, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे मेरे केरलियन फ्रेंड्स है जो दुबई, यूके, यूएई में जाते हैं, वहां पे उनको साउथ इंडियन नाश्ता नहीं मिल रहा है। तो वो साउथ इंडियन नाश्ता बनाने के लिए उसने एक मशीन भी नहीं बनाया, उसने एक पैकेजिंग बनाया। जैसे ये बॉटल है वैसा ही एक पैकेजिंग बनाया, जैसे केचप का एक बॉटल आता है, जो केचप का बॉटल आप प्रेस करके उल्टा करके उसमें से केचप निकालते हो, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया उसने, जो यूज एंड थ्रो है, पैकेजिंग का आइटम है। मगर उसमें जो उसने इंजीनियरिंग यूज किया है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ऐसा नहीं है कि किचन का प्रॉब्लम कोई छोटा प्रॉब्लम है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है। यहाँ पे शायद ऑडियो नहीं सुनाई देगा आपको, तो मैं बताऊंगा कि मुस्तफा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलाया गया उसको लेक्चर देने के लिए, और ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ कि आप पीसी मुस्तफा आईडी कंपनी सर्च करेंगे यूट्यूब में तो ये वीडियो मिल जाएगा। उल्टा मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका स्पीच बहुत बड़ा है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो आप आराम से बाद में इस स्पीच को सुन सकते हैं।
उसने ये बताया है कि ये साउथ इंडियन को जो वड़ा बनाते हैं, और वो वड़ा जो है वो रेडी टू कुक पैकेजिंग में डिलीवर करना था, ताकि मेरे जो साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं जो यूए दुबई में रहते हैं, वो एक केचप जैसा बॉटल ले और घर में उसको स्क्वीज करके, वो बॉटल को प्रेस करके इंस्टेंट वड़ा बनाए। किसी को लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर आईडी कंपनी रेडी टू कुक फूड में डील करती है और 100 बिलियन की कंपनी हो चुकी है, और उनका मेजोरिटी सॉल्यूशंस ऐसे ही है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मैं खुद बॉम्बे में रहता था, तो मैं खुद उस कंपनी के फूड प्रोडक्ट्स यूज कर चुका हूँ। रेडी टू कुक चपाटीज आती थी उनकी, उसको यूज कर चुका हूँ। तो बहुत बड़ा बिजनेस है, और इंजीनियरिंग के एंगल से ये लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फूड का जो बिजनेस है, आपने सुना होगा कि एक पानी पूरी का ऑटोमेटेड मशीन अहमदाबाद में इंस्टॉल किया है, जिसमें कंप्लीटली टच किए बिना पूरा पानी पूरी बनता है। तो उसमें इंजीनियरिंग तो डेफिनेटली यूज हुआ है। तो किसी को अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है, आप इसको डेफिनेटली कंसंट्रेट कर सकते हो। मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और वहां पे पहुंच जाएंगे कि जहां पे वो जो उसका जो इन्वेंशन है वो देख सके हम। और इसमें इसमें ऐसा सोचा भी नहीं था लाइफ में कि इतना गरीब होते हुए, इतनी कम सैलरी होते हुए मैं एक इतना बड़ा आदमी बनूंगा और यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको वॉइस की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक वड़ा बनाने का स्क्वीज बॉटल उसने किस तरह से आइडेंटिफाई किया और बनाया है। अब इसको उन्होंने कैलकुलेट किया है प्रॉपरली, और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसे इंस्टेंट आइडिया है और बन गया है। ये पूरा प्रोडक्ट प्रॉपर बनाने में उन्होंने करीब करीब 1.5-2 साल लगाया हुआ है। ये इसका प्रोडक्ट है, और ये इस तरह से इस बॉटल को ओपन किया जाता है, इसको इस तरह से स्क्वीज किया जाता है, और जब कट करना होता है तब उसको नीचे की तरफ लाया जाता है। So they have series of such products with ID company। इसको आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, मुझे फूड पे, देखिए चॉइस रहती है। प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया आपने, आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा लोगों से बात करके, मगर उस सॉल्यूशन पे आप काम नहीं कर रहे हो। ऐसा हो सकता है आपके फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, आप उस स्टार्टअप का हिस्सा है, मगर आप उस प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे। मगर आपको कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, क्योंकि मैं तो मैकेट्रॉनिक्स हूँ, मुझे 3D प्रिंटर बनाना है, मुझे 3D प्रिंटर को यूज करके कोई ये करना है। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल दूंगा कि एक लड़का था, उसने अगेन प्रॉब्लम तो एक छोटा घर का ही है। घर में पर्दा जो होता है, वो पर्दे को जब पर्दे का यूज नहीं होता है और एक साइड पे हम जब रखते हैं, तो उसका एक हैंडल बनाया उसने, और उसमें उसने टेक्नोलॉजी को यूज किया। मगर बाद में एक बार वो प्रोडक्ट अमेजोन पे बेचना चालू किया और बहुत सारे बेचने लगा, तब पता चला कि अभी 3D प्रिंटर का यूज नहीं है, क्योंकि बल्क में जब प्रोडक्शन करना है तो एक वांस होता है लकड़े का, जो एक वो होता है वांस, उसके अंदर से वो प्रोडक्ट मल्टीपल बन रहा है। तो उसको 3D प्रिंटर की जरूरत नहीं है या कोई मशीन की जरूरत नहीं है। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा, जिसमें ये लड़के का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप ध्यान से देख सकते हैं, और एकदम छोटी प्रोडक्ट है।
घर का ही प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसने। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता गया, उसने 3D प्रिंटर को यूज करना छोड़ दिया, और जब बल्क में उसको मैन्युफैक्चरिंग करने लगा तो उसने काफी कुछ अलग टेक्निक यूज किया। ये बाम्बू को उसने कटिंग करके यूज किया। तो थोड़ा इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये इसकी प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं, ये पर्दे के ऊपर लगाने की एक प्रोडक्ट है। मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लिया है जहां पे उसने इसको बेचने के लिए रखा हुआ है, और इतना पॉपुलर हो गया है ये प्रोडक्ट के बाद में फिर उसको उसकी कंपनी एस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद उसने 3D प्रिंटर को यूज करके कोई नई प्रोडक्ट पे अभी काम कर रहा है, ऐसा मैंने सुना। तो यहाँ पे मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि ऐसे भी इसमें कोई ऑडियो अभी आप सुन नहीं रहे हो, मगर डेफिनेटली आप इसको भी सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हो। मैंने यूट्यूब से ही इसको डाउनलोड किया है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैंने खुद उसको कहीं से इंपोर्ट किया है, या मैंने खुद इसको शूट किया है, या मैंने खुद इसको इंटरव्यू किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अमेजोन पे ये लड़का है, उसने जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ गया तो आगे चल के उसने अपना प्रोडक्ट जो है वो 3D प्रिंटर को यूज करके वो सेल कर रहा था। उसके जगह पे उसने आपको आगे दिखाई देगा कि वो बाम्बू को कट करके वो प्रोडक्ट को यूज करने लगा। तो एक 3D प्रिंटर लेके एक आइडिया को आप एक लेवल तक अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट बेच के भी आप कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग 3D प्रिंटर को प्रमोट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मगर कोई आपको टेक्नोलॉजी के साथ काम करके करना है तो आप बीइंग अ इंजीनियर आपको शायद अच्छा लगेगा कि मैं एक 3D प्रिंटर यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब और भी ऑब्जर्वेशन है, आगे मैं दिखाऊंगा। थोड़ा टाइम अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैं और भी वीडियोस आपको दिखा सकता हूँ, जहां से आपको पता चलेगा कि मुझे और क्या क्या ऑब्जर्व करना है। चलो, ये जैसे मैंने बताया कि खाना बनाने का मशीन आज नहीं है, और आपको भी पता है कि विदेश में अगर ये बन गया तो बहुत सारी इसकी डिमांड रहने वाली है। तो मैकेनिकल शेफ करके साउथ इंडिया में एक मशीन बना है, रोबोट बना है, जिसमें एक पूरा का पूरा खाना 100 जितने व्यंजन की प्रोग्रामिंग आप इसमें कर सकते हो और खाना पूरा बन सकता है इसमें। रोटी बनाने का मशीन तो आपको पता ही है, लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, मगर घर में रोटी बनाने का मशीन आज भी नहीं है। तो उसके ऊपर आप काम, वो भी मैंने सुना है कि आटा मेकर कंपनी है, उसने अभी बनाना है, मगर वो पॉपुलर नहीं है। तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होंगे, ताकि वो घर घर तक वो जो मशीन है वो नहीं गया है अभी तक। तो ये एक मशीन, अभी भी ये मशीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं है, उसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। 35,000 में ये लोग मार्केट से निकालने की कोशिश में है, मगर 35,000 भी शायद आम घरों में वो नहीं ले सकते उस मशीन को। और वो मशीन का काम कैसा है, प्रॉपर है कि नहीं, वो आज की डेट में भी किसी को पता नहीं है। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1-2 साल पुरानी बात है। तो इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। तो आगे बढ़े। एक हेलमेट का यहाँ पे मैंने वीडियो लिया है, टेक्नोलॉजी पे, ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर कोई आइडिया पे काम करना है तो ये एक ऐसा हेलमेट है, जब आप पहनते हो तो आपको पूरा का पूरा ट्रैफिक का लाउडनेस होने के बावजूद आप अपना जो फोन अगर आता है तो वो फोन की बातें आप सुन सकते हो। आप कहीं पे भी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो नियम है, रूल्स है, उसको आप ओबे करके इस हेलमेट को पहन सकते हो। और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इसको मना करेगा। तो इस तरह का एक हेलमेट स्टीलबर्ड ने बनाया है, और वो भी प्राइस रेंज 2000 के अंदर। चलो फिर भी वो 2000 बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। ये कोई पैटेंटेड मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकता है,
तो आप इसके ऊपर भी काम करके इसकी अंदर जो भी फैसिलिटीज उन्होंने डाली है एक एक, और मैंने सुना है काफी हमारे पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही ऐसे बहुत सारे आइडिया डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज पे काम करते हुए सुना है। तो प्रोडक्ट अभी तक भी रेडी नहीं है। तो एक आइडिया का सोल्यूशन लाने के बाद आप किसी ऐसी कंपनी को भी ये आइडिया जाके सुना सकते हो, ताकि वो आइडिया पे वो लोग काम कर सकते हैं। आप पैटेंट रजिस्टर करके उस पैटेंट को भी बेच सकते हो, आइडिया को बेच सकते हो, समथिंग लाइक दैट। सॉरी, आज मैं ऑडियो को हम लोग नहीं दिखा सकते, मगर यहाँ पे आपको मैं वीडियो ऐसे ही बता रहा हूँ जिसमें आपको शायद ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक बुकनीचर करके कंपनी है, ये वीडियो तो शायद आपने देखा होगा, काफी इंक्यूबेशन सेंटर्स और यूज कर रहे हैं इसको आइडिएशन के टाइम पे। तो एक बुक जैसा ये प्रोडक्ट बनाई है जिसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर है, 3D प्रिंटर में हनीकॉम स्ट्रक्चर हर एक प्रोडक्ट में डाला जाता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। तो एक सीटिंग अरेंजमेंट है, एक टेबल का अरेंजमेंट है, तो एक बुक जैसी चीज जो आप अपने साथ लेके जा सकते हो, और कहीं पे भी सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है वहां पे आप लगा सकते हो। ऐसी एक प्रोडक्ट अगर बन सकती है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जहां पे भी आपकी जरूरत है वहां पे आप उसको खोल के बैठ सकते हो, टेबल के तौर पे यूज कर सकते हो। और बिलीव मी, ये बुकनीचर करके कंपनी है, उसकी पूरी कंपनी इसी प्रोडक्ट के ऊपर चल रही है, कुछ और उन्होंने नहीं करना। बस बुकनीचर की जो प्रोडक्ट है ये इनके फाउंडर है माइक मैक, जिनकी प्रोडक्ट यही प्रोडक्ट के ऊपर उनका स्टार्टअप चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आइडिया ऑब्जर्वेशन का ही एक और वीडियो देखते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं। यहाँ पे पियानो स्टेयर्स बनाए हैं। नॉर्मली लोग एस्केलेटर यूज करते हैं ऊपर जाने के लिए, आप देखिए अभी यहाँ पे तो जो स्टेयरकेस है वो यूज नहीं करते, एक्सेलरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया, एक प्रोजेक्ट के तौर पे एक बनाया कि एक जो स्टेयरकेस है, रूटीन स्टेयरकेस है, उसको पियानो में कन्वर्ट कर दिया, ताकि लोग जब उसको इसके ऊपर चढ़ते हैं तो पियानो जैसा आवाज आता है, म्यूजिक बजता है। तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग रूटीन में, ये इंस्टॉलेशन की बात की मॉर्निंग है, सो रूटीन में लोग एस्केलेटर को छोड़ के पियानो वाले जो अरेंजमेंट है स्टेयरकेस की, उसको यूज करने लगे। और नॉट ओनली यंगस्टर्स बट बूढ़े लोग भी स्टेयरकेस यूज करने लगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर, एस्केलेटर की जगह पे लोग स्टेयरकेस कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हो। एंड सॉरी अगेन, इसमें म्यूजिक अभी नहीं सुनाई दे रहा है बिकॉज ऑफ सम अरेंजमेंट विच आई एम नॉट हैविंग, बट आप देख सकते हो कि पियानो का डिजाइन है और लिटरली उसमें पियानो जैसा आवाज आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आइडिया नहीं है तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी इंप्रूव कर सकते हो। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। यही एक कार्ट का व्हील था, आज वो कार का व्हील बन गया है, एलॉय व्हील बन गया है। एलॉय व्हील की क्या जरूरत है, नॉर्मल व्हील भी चल सकता है। मगर आपको पता ही है एज ए इंजीनियर, तो एक ये पूरा व्हील, सालों से व्हील की इन्वेंशन हो चुकी है, सालों से व्हील लोग यूज कर रहे हैं, मगर अभी भी आज की डेट में भी उसमें चेंजेस हमेशा हो रहे हैं। अब टायर में टायर के अंदर, टायर और ट्यूब का अंदर अभी चेंज हो रहा है कि भाई ट्यूबलेस टायर की बात चल रही है, पंचर ऑटोमेटिक हो जाए ऐसी बात चल रही है। पंचर हो ही ना, टायर में कभी भी पंचर ना हो, उसके ऊपर काम चल रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे एक कूली का काम, बहुत कूली की जरूरत कम हो गई है जब से व्हील पहले से लोग यूज कर रहे हैं, मगर सामान में कब लगाया हमने। तो ऐसा कोई एग्जिस्टिंग
प्रोडक्ट को किसी और टेक्नोलॉजी से मिक्स करके, अभी आपने देखा होगा कि लेटेस्ट में एक ऐसा ही लगेज है जो जब जहां पे आप जा रहे हो वहां वहां आपके पीछे आ रहा है। देखा है आप लोगों ने ऐसा कोई लगेज? अगर नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिए। एक लगेज है, व्हील वाली एक लगेज है जो आपके साथ आपके पीछे पीछे आपको फॉलो कर रहा है। तो सही बात है ना, जब व्हील है उसके अंदर और ऐसे सेंसर्स अवेलेबल है और उसको ट्रैकिंग करने का जब चीजें अवेलेबल है, आपके पास अपना मोबाइल है, मोबाइल के साथ उसको लिंक करके वो सामान आपके पीछे पीछे क्यों नहीं आ सकता है? एयरपोर्ट में तो ऐसी सुविधा है कि वहां पे और जहां नहीं है वहां पे आप उसको उठा के तो रख ही सकते हो। तो ये एक चीज है। टेलीफोन, जिसमें आज इतनी सारी इन्वेंशन हो चुकी है। सारेगामा कारवा एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आप समझ सकते हो इंटरनेट पे पूरे के पूरे गाने चले गए हैं। किसी ऑडियो टैप की जरूरत नहीं है, किसी रिकॉर्ड प्लेयर की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन सॉन्ग्स की जरूरत नहीं है। फिर भी एक ऐसा प्रोडक्ट आज की डेट में लॉन्च करना जो बुजुर्ग लोगों के लिए लॉन्च किया, जो टारगेट ऑडियंस है उसको ध्यान में रख के लॉन्च किया और उसको प्रोडक्ट इनोवेशन कैटेगरी में विनर बनाया। तो समझ लीजिए, आइडिया ऑब्जर्वेशन प्रॉपर करना बहुत ही बड़ी चीज है। आप समझ सकते हो, इंटरनेट पे क्लाउड पे हमारे गाने चले गए हैं और उसमें एक ऑफलाइन प्रोडक्ट बनाना और उसको बेच के एक विनर बनना, एक रिमार्केबल प्रोडक्ट बेच के ही वो कोई रिमार्केबल बन सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि डिजाइन थिंकिंग इज द कॉन्फिडेंस दैट न्यू बेटर थिंग्स आर पॉसिबल एंड दैट आई कैन मेक देम हैपन। ये आपको स्टेटमेंट आपके ध्यान में, आपके हमेशा साथ में रखना है। सो यहाँ पे मैं एक ये सेशन खत्म करूंगा और अगर मैं एक इंटरेक्शन करना चाहूंगा अपनी टीम से, मैं टाइम को ध्यान में रखा नहीं है, तो अगर कोई क्वेश्चन आप फेसबुक पे अगर कोई क्वेश्चन अभी आया है तो वो मैं आंसर करना चाहूंगा। और एक दो और घरेलू प्रॉब्लम्स के ही वीडियो मैंने यहाँ पे मेरे पास है, तो उसको सॉल्यूशन के तौर पे, सॉल्यूशन तो नहीं है, जुगाड़ी है, मगर वो जुगाड़ का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं कुछ मेरे वीडियो प्ले चालू रखूंगा। बाय द टाइम मैं मैडम को और सर को बात करूंगा कि कितना टाइम है हमारे पास और क्या हम अभी आगे कर सकते हैं। Sir, we don't have much time. We need to conclude this. Yes. And I'm continuously checking the feedback from Facebook. For now, there is no such questions regarding this. Okay, sir. So I guess you are very thorough and students has understand it perfectly. So Yes. student doesn't have much questions about this. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. So if it's done from your side, we can conclude the webinar now. Yes, sir. It is done from my side. Thank you for this session. Okay, sir. Thank you so much for joining us. And it's really a very informative and interesting session. I hope student has learned so many things and will be encouraged by this session to start their own startup. At least try to start their own startup. Maybe they can face a failure in first or second try, but we are always there. The EDC department and EDC cell and all the university is always there for them to help them. Thank you so much again, sir, for joining us. And it's a pleasure to have you, sir. Thank you, sir. Okay.